Okay. So, are you able to understand? Sorry, Umesh. Actually, I got a call from someone. He was in a queue for a very long time. He wanted to talk to me, calling from Abu Dhabi. So, had to get this done. Okay. All right. So, is it getting clear? Little bit? Yes, no, maybe. कुछ कुछ समझ में आ रहा है? क्या करना है? After स्टॉक कैसे बताता है? after volume breakout, Hmm. we need to take a decision to go for put or for call, sir. Yes. Right. How to decide, sir? Okay. What you'll have to do is you will assess the trend. If the trend on the breakout day is upside, okay, you have to go towards call. You have to buy calls, or you have to sell puts. Either ways Yes, you sir. can do. Okay. Yes, sir. Now, say for example, you want to reduce your risk, you will buy calls. If the trend is upside, Yes, sir. if it is like this, Yes, sir. then you will buy calls. Yes, sir. So you will decide calls, and Yes, sir. if the trend on breakout is this, something like this, Yes. your this thing would be that you need to sell. You need to buy puts. Put. Yes. Okay. Now Okay. you will only do it breakout to breakout. Okay. In between is all noise. In between, see, breakout means this area to this area. In Yes, sir. between, it is all this noise. This is called noise. Yes, sir. Okay, like it is coming here and then it is coming here. So all this in between is noise. What you want is this fall. Yes, sir. You want to eat this. This is going to give you regular income. So how will you get this? That you will have to knock out the noise, and the knocking out the noise method in options trading is that only assess it from breakout day to breakout day. Okay. Okay, because if the volume is not breaking out, then it is going to do something like this place. Yes. And we don't want to trade this area because this is a low volatile area, and both the call volumes and put volumes will fall. Values will fall. Yes. Okay, we want this. So we will do it from this to what you call Breakout to breakout. breakout to breakout. Only from breakout to breakout is what you have to do. Just give me 1 second. Okay. Hello. No. Who's this? Daniel. Yeah, I'm in a webinar right now. So okay, fine. Thanks. Bye. Sorry. So so this particular area, okay, you want to trade this particular area. You don't want to trade these areas. Okay. Okay. You don't want to trade these areas. You want to trade these areas, these areas, these areas. Okay. Okay. All right. So let me ask this question now. Abhishek, Yes, sir. when will you shortlist or focus on a stock for your trading, options trading? First, I will look out for the breakouts. Volume breakout. Volume breakout. First, I That's have the to look answer. out for the volume. Yeah. That's the answer. That's the answer. Volume Okay. breakout. Okay. Take it. Karthik. Yes, sir. Once you have identified your stock, Yes, which sir. means the volume breakout has happened, Okay, sir. your first intention to trade the stock would be on which direction? Towards which side? If the volume breakout is giving the uptrend, my first intention will be to buy the calls, sir. Very good.
So your first intention would be to buy calls. Okay. Yes, You sir. will not buy puts. Yes, sir. Okay. Very good. Uh, who has a mic now, other than the new guys? Huh? Poonam ji? Rahul? Yes, sir. Okay. Rahul, once you get a breakout, Right. okay, and the trend is like this, say for example, it is on the upside. The first thing that will come to your mind is that you want to trade it long. Long means you want to Call. buy calls or you want to sell puts. Right. Okay. Now, in that case, is there a possibility that the trade can turn around Yes. and not move in your direction? Yes. Okay. How will you get to know about it? Maybe I'll look at the high price of the call then, right? What was the highest price of the call? So if it breaks the call price, the strike price of I'll select a strike price, and then if it breaks the high of that price in that call, I'll then only enter into the trade. Else I won't. Else you won't. Yeah. Very good. Excellent. Very, very good. So that also will be one of your checkpoints for doing it. Okay. Prabhakar ji, do you have a mic? Okay. Ravi? Uday? Yes, sir. If you are ever confused which strike price to buy or sell, okay, how will you try to find that out? From the interface report, Okay. What will you try to look out for? Definite strike price, call and put prices Okay. What you will have on to the do is, on the breakout day, Hmm. high and low prices. Hmm. Whether Yep. high is cracking or low is cracking, I will find out. Then I will enter. No, that is entry. What I'm trying to say is which strike price to trade. Before the breakout, Huh. stock made what is the high and what is the low it made on the same month. It will be decided on the open interest build-up. Okay. Oh, okay. Correct. Okay. So sorry. say for example that you are confused that which strike price should I trade. Say in case of Tata Steel we saw, Yeah. should I trade the put of 500 value or should I trade it 480 or should I trade 460 or 440 40. Yes, sir. or 420? Okay. Yes. The way is that you will open on the breakout day, you will open the interface report of all the strikes. Also. You will see till what point is the open interest build-up happening. Yes. Wherever the open interest build-up is not happening, like over here you see minus. Yes. It means it will be very difficult for the stock to reach that level. Yes. So you will trade the strike price which is above that level, where the last level where the open interest build-up has happened. Yes. Okay. Yes. Fine. All right, guys. Is it all clear? Index में बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. Very good. Okay. So इंडेक्स में जब आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी होगी कि इंडेक्स के पास केवल प्राइस होता है. इंडेक्स के पास आपको वॉल्यूम नहीं पता चलेगा. इंडेक्स के पास आपको डिलीवरी क्वांटिटी नहीं पता चलेगा. ये जो वॉल्यूम वाला जो पैरामीटर्स है वो इंडेक्स के पास नहीं होता है.
इंडेक्स के पास जो होता है वो होता है केवल प्राइस। अब आप सीखने वाले हो कि इंडेक्स में केवल प्राइस को देख करके आप किस तरीके से अपने ट्रेड को कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ फॉर डूइंग दैट, कौन से दो इंडेक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं? Nifty 50 and Bank Nifty. निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी हम लोग इन दो को देखेंगे। ठीक है, और उसके लिए मुझे थोड़ा लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। तो गाइस गिव मी अबाउट 5 मिनट्स, सो वी विल रीस्टार्ट एट 1:35। ओके, डोंट लॉग आउट, जस्ट लीव इट एज इट। Another 30 minutes we'll be done. Okay, 3:35 is what we will start. Sorry, 1:35 is when we will restart. Okay. Okay, sir.
right, friends, I'm back. लो वॉलेटिलिटी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ओके, इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, पर ये आएगा ट्रेंड के बीच में, तो अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले इंडेक्स देख लेते हैं एंड देन आई विल आंसर दिस। एवरीबडी रेडी? शैल वी गेट स्टार्टेड? Yes, sir. Okay. Now, in index, the problem is that you will not have a volume to help you, ठीक है? तो उसमें हमको प्राइस को गाइड कर से गाइडेंस लेकर के हमको ऑप्शंस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, चाहे बाई साइड है चाहे वो सेल साइड है, ठीक है? तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यू विल हैव टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द प्राइस ऑन द इंडेक्स। ओके, अब उसको आप किस तरीके से करोगे? What will happen is that in case of Nifty, a trend like this will be formed. Okay, now this is basically called as a compression zone. Okay, so we will have to spot a compression zone. So this spotting of compression zone will have to be done using the price, ठीक है? तो प्राइस को इस्तेमाल करके आपको इस कंप्रेशन जोन को ढूंढना होगा, ठीक है? अब देख लेते हैं कि उसको कैसे हम ढूंढ सकते हैं, और वो भी लाइव चार्ट्स पे देख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा आसान हो जाएगा इसको समझना। ओके, ये मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं इसमें मान लीजिए कि निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ऑलराइट, सो अब मान लीजिए कि निफ्टी के चार्ट को मैं आवरली इंटरवल पे ओपन कर लेता हूं, ठीक है? तो वो चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अपने को। ओके, नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज ये मैंने डे सेपरेटर्स लगा दिए हैं, तो यहां से दिन शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट? यहाँ से दिन शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, एंड ऑल दैट। ओके, अब इसमें एक चीज करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, किसी भी एक दिन से इस काम को चालू कर देता हूँ, ठीक है? मान लीजिए कि मुझे इस दिन से मैंने चालू किया है, तो गाइज सबसे पहली चीज जो हमको करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि 2 दिन के बीच में हमको इसका जो भी क्लोजिंग लेवल था उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब on this particular day the Nifty's range is this, ठीक है? ये है रेंज निफ्टी का। इस दिन का ट्रेडिंग जब हो जाएगा तो निफ्टी का रेंज यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये होगा, ठीक है? और अब इसको डिलीट कर देता हूं, या मान लीजिए इसको ब्लैक कलर कर दिया।
अब जब इस दिन का ट्रेडिंग हो गया तो निफ्टी का रेंज जो है वो यहां पे है। अब आप ये देखिए, पहले दिन पे रेंज कहां पे था, यहां से लेके यहां तक, ये जो ब्लू लाइन है, मानते हो? ये टोटल रेंज था निफ्टी का। ओके, ये पूरा रेंज जो था वो निफ्टी का था। ठीक है, अब क्या होगा कि अगले दिन पे फिर ट्रेडिंग हुआ। अगले दिन पे जब ट्रेडिंग हुआ तो निफ्टी का रेंज जो है वो इस ब्लू लाइन से लेकर के इस वाले ब्लैक लाइन तक हुआ। अब मुझे अभिषेक ये बताओ, ये रेंज उसके पिछले दिन के रेंज से रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है? कौन सा रेंज सर? कौन सा वाला? जो सेकंड डे का रेंज बना इस ब्लू लाइन से लेके जो ब्लैक लाइन तक, हाँ ये रेंज इन दो ब्लू हाँ। लाइन की रेंज से बड़ा है या हाँ। छोटा है? ये वैसे छोटा दिख रहा है मुझे, छोटा है दिख रहा है। ठीक है, हम्म तो ये कम है, तो इसका मतलब होता है कि रेंज में कंप्रेशन आया। ठीक है कार्तिक, अब Yes, sir. नेक्स्ट डे का जब ट्रेड हो गया तो मुझे ये बताओ, अब इस लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूं, अब मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लू से लेके ब्लैक लाइन तक का जो रेंज है हाँ उसके सर, कंपैरिजन में जो नेक्स्ट डे पे ब्लैक लाइन से ब्लैक लाइन का जो रेंज बना है वो छोटा है या बड़ा है? छोटा है सर। छोटा है। इसका मतलब फर्दर कंप्रेशन हुआ है हाँ और सर, कंप्रेस हुआ है। ठीक है, हाँ सर, अब जब अगले दिन पे ट्रेड हुआ निफ्टी तो रेंज यहां पे चला गया, इस वाली जगह पे। तो अब जो नया हाँ रेंज सर, है, ये जो नया रेंज बना इस दिन के ट्रेडिंग के बाद, वो बना इस वाले ब्लैक लाइन से लेकर के इस वाले ब्लू लाइन तक, राइट? ओके सर। अब ये बताओ कि ये वाला जो ब्लैक लाइन से लेकर ब्लू लाइन तक का जो रेंज है वो हाँ सर, वो इस ब्लैक लाइन से ये वाला जो रेंज है, क्या ये हाँ वाला सर। रेंज इस वाले रेंज से ज्यादा है या कम है? क्या लग रहा है देख के? ज्यादा है सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्रेशन हुआ था यहाँ पे इस वाले जोन में, जिस तरह से हमने लाइंस को ड्रॉ किया था। ठीक है, हाँ सर, जिस तरह से हमने लाइंस को ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ था। यहाँ पे कंप्रेशन होने के बाद इस दिन पे एक एक्सपेंशन हुआ है, मानते हैं? हाँ सर, ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि इस दिन पे जब ये रेंज का एक्सपेंशन हुआ, ये देखिए ये वाली जगह पे ये रेंज का हाँ सर। एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, रेंज हाँ का सर। एक्सपेंशन होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, इस रेंज के अंदर चला गया या इस रेंज के बाहर से ऊपर चला गया? बाहर से ऊपर चला गया सर। ठीक है, जब भी प्राइस का मूवमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हाँ सर, ओके, इसमें आपको ढूंढना ये होता है, ठीक है, प्राइस मूवमेंट के साथ आपको ये ढूंढना होता है कि निफ्टी का जो रेंज है वो कहां पे कंप्रेस हो रहा है। इसको अगर आप रिपोर्ट्स पे आसानी के साथ देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स, इंडाइसेस, हिस्टोरिकल डेटा, सर्च, और यहां पे मान लीजिए निफ्टी 50 है। ठीक है, आप कोई भी उठा सकते हो यहां से, पर निफ्टी 50 है और मान लीजिए कि मैं जून 1 से डेटा को उठा लेता हूं। ठीक है, अब ये डेटा है। ओके, अब इसको थोड़ा मैं एक्सेल शीट पे डाउनलोड कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखा दूंगी। ठीक है, ये डेटा आ गया है मेरे पास सारा निफ्टी का। देखिए 1 जून से मैंने डाउनलोड किया था और लास्ट डे तक मेरे पास सारा डेटा है इसमें। अब इसमें मुझे इनकी जरूरत नहीं है।
अब देखिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करूंगा। रेंज कैसे हमें कैलकुलेट करना है कि पिछले दिन का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द क्लोज प्राइस है, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, ठीक है। तो अपने को कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। अब इसमें मैं एब्सोल्यूट रेंज लगा लेता हूं क्योंकि ये तो माइनस प्लस करके दिखा रहा है ना, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेंज बना लेता हूं, मतलब इस माइनस साइन जहां पे भी बन रहा है इससे आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि इक्वल टू स्क्वायर रूट दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, मतलब इसी को स्क्वायर कर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो अगर माइनस साइन होगा तो वो हट जाएगा उसमें से, ठीक है। कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकल एक तरीका है इसको करने का। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यहां पे कितने का रेंज आ रहा है 67.7 का, अगले दिन कितना आ रहा है 95.35 का, तो कंप्रेशन हो रहा है। पर ये एक ही दिन कंप्रेस होकर के एक्सपैंड हो गया, ठीक है। अब हम एक जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे कि थोड़ा सा कंप्रेशन आए, मतलब कंप्रेस हो, एटलीस्ट 2-3 दिन तक कंप्रेशन चालू रहे उसमें। तो यहां देखते हैं कि हाँ, इस वाली जगह पे देखिए 89.4 का रेंज बना 19 जून को, 19th ऑफ जून को। अगले दिन पे रेंज थोड़ा सा और कंप्रेस हुआ, ठीक है। यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं, इसको पढ़ रहा हूं और इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पे एक 89.4 पॉइंट्स का रेंज बना, उसके बाद ये रेंज थोड़ा कंप्रेस हुआ, 61.6 का रेंज बना। उसके अगले दिन ये रेंज और कंप्रेस हो गया और केवल 30.95 का रेंज बना, मानते हैं? ओके, तो ये वाला जो रेंज है दिस इज द लास्ट रेंज जहां पे कि कंप्रेशन हुआ। ये देखिए 1 2 3, ये 3 दिन से ऐसे करके कंप्रेस होते होते यहां पे आखिरी बार रेंज कंप्रेस होकर के ये ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहां पे रेंज एक्सपैंड हो गया अचानक से, मानते हो? Yes, sir. 30.95 से अचानक से 80.75 पे चला गया, ठीक है। और जब ये हुआ तो इज इट अ पॉजिटिव मूव और अ नेगेटिव मूव? पॉजिटिव दिख रहा है अपने को, Yes, प्लस sir. की तरफ दिया है ना, मतलब प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट? प्राइस डिक्रीज तो नहीं हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ है, राइट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब जब ये प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहां पे देखिए यहां पे प्राइस इंक्रीज हुआ तो यहां पे जो हाई था वो था 10837 का, ठीक है। और जो लो था वो था 10710.45 का, करेक्ट? This was the first time when the range expansion happened. The high is 108.37 and the low is 10710.45, ठीक है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होगा ऑन द अपसाइड, किसी का माइक अनम्यूट हो गया, कार्तिक, ओके ओके। तो अगर इस रेंज को अपसाइड पे कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ था ना, ये पॉजिटिव था, तो वो इस वाली जगह से करेगा, मतलब इसका हाई ब्रेक करेगा। पर अगर इस रेंज को फेल हो जाना होगा और नीचे गिरना होगा तो वो इस लो को तोड़ करके नीचे चला जाएगा, जो कि 710 का है, ठीक है। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये वाला हाई और ये वाला लो, ठीक है। इसके ऊपर लॉन्ग है और इसके नीचे शॉर्ट है,
1071.45, ठीक है, तो 10,710 का लेवल है, ठीक है, 10,710 का लेवल है. Is it breaking down or is it breaking above 10837? If I have to talk about a range, it is 10,850 and 10,700. Is it going downward or is it going upward? Okay, so the trade is on the downside. ठीक है, the same way 837, okay, if the price breaks out on the upside, ठीक है, in that case the trade will be on the long side. Clear? Now if we look at the overall Nifty trends, is Nifty bullish or bearish? Bullish. Bullish. Okay, whenever the range will break on the upside, it will be more profitable. Is this clear? If you stay with the long term trends, whenever the breakout will happen on the upside after compression, it will be more profitable. Okay, therefore whenever you will look at this range breakout or basically the range compression breakout, okay, let's see, यहाँ पे the price went down, right? अब देखते हैं कि is there any other compression that we can spot? I can spot one compression here. See, it is 125 points, then it is 57 points, and then it is 42 points, and then there was a breakout. Yes or no? See, 125, 57, 42.6, then it is 70. So there is a breakout. This is the important level. Long above this level, short below this level. So it is roughly 10,800 level, roughly, okay? 10,800 level. Do you see the level is getting, it is trying to go up? There's a kind of a breakout. Yes, sir. Here the breakout is also confirmed. It closed above this. Do you see market went to 11,000 levels? 300 points up move. Yes, sir. Okay. So if you will participate along with the long-term trend within Nifty or Bank Nifty, okay, so whenever the range will break out on the upside, it will be more profitable for you. Okay. However, you can also trade the short-term trends. There's no problem. Okay. The only difference is maybe in this kind of a trade, keep a 100% profit target. In these kind of trades, keep a 200% profit targets. Okay. लेवल्स को फाइंड आउट करने का तरीका वही रहेगा कि कौन से कॉल को खरीदना बेचना है या कौन से पुट को खरीदना बेचना है. द प्रोसीजर विल बी सेम. यू विल गो टिल द एक्सटेंट वेयर द open interest buildup has happened. You can trade that level. Okay.
निफ्टी बैंक, क्या लग रहा है? बुलिश, लॉन्ग टर्म ट्रेंड bullish. Okay, whenever the range breakout after compression will happen on the upside, it will be more profitable. Whenever the range breakout happens on the upside, it will be extremely profitable. The only difference would be if it is happening on the downside, take a 100% kind of a target. If it is breaking out on the upside, take a 200% kind of a target. Okay. Never try to trade weekly options in Bank Nifty. Okay, that's a caution. ठीक है, जब वीकली ऑप्शंस में बाइनरी ऑप्शंस लॉन्च हो जाएगा हमारे मार्केट्स में, तब आप ट्रेड कर सकते हो, बट डोंट ट्राई टू ट्रेड वीकली ऑप्शंस. इट विल बी एक्सट्रीमली रिस्की फॉर यू. ठीक है, and please remember, if you are selling call or selling put, hedge the opposite side of the market also. Okay, please hedge the other side of the market. It will be very important. Never leave your exposure, okay, with the sell in the market. Always hedge it with a buy on the other side if you are willing to do that. ओके, तो इसमें ये सिंपल प्रोसेस है. ठीक है, ओवर ट्रेड ना करें इंडेक्सेस को. बहुत सारे लोग कहते हैं रोज ट्रेड करो इंडाइसेस को, रोज ट्रेड करो इंडाइसेस को. मत करो. ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करना है. जब भी इस टाइप का ट्रेड्स बनेगा, ऊपर ब्रेक होगा, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है ऊपर ब्रेक होगा तो होल्ड करो उसे. ठीक है, उसमें 200% तक जाओ. ठीक है, तो अगर मान लो 10,000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हो तो 20,000 का प्रॉफिट लो उसमें. दैट मेक्स मोर सेंस. ठीक है, कंपेयर टू दैट यू आर ट्रेडिंग इंडेक्स एवरी डे. ऑलराइट, और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है, नो इंट्राडे ट्रेडिंग इन ऑप्शंस. ये समझ में आ गया? ऑप्शंस को कभी भी इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है. ऑप्शंस इज अ हेजिंग टूल. डोंट ट्राई टू ट्रेड इट इन इंट्राडे, at least till the time you have a lot of experience. ठीक है, रिस्क बहुत हाई है और उसमें से आउटपुट जो है वो बहुत कम है. ठीक है, 4,000 रुपए का बाइंग करोगे तो 40 रुपए का प्रॉफिट निकाल सकते हो. ओके, और इसमें लेवरेज वगैरह कुछ नहीं लगता है. राइट, तो 4,000 रुपए पे 40 रुपए निकालना ज्यादा अच्छा है या 4,000 रुपए पे 400 रुपए निकालना ज्यादा अच्छा है? ठीक है, और 4,000 रुपए पे अगर मैं बोलूं कि आप 800 निकाल सकते हो या 1,600 निकाल सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर है या 4,000 लगा करके 40 रुपया निकालना ज्यादा अच्छा है? ठीक है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि इंट्राडे नहीं करें कभी भी ऑप्शंस में. इंट्राडे के लिए जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है कैश मार्केट.
ठीक है, फ्यूचर्स मार्केट में भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा मतलब एडिशनल कॉशन जो है वो लेकर के करना होता है। उसमें थोड़ा एक दो एडिशनल ट्रेंड कॉन्फर्मेशन के मेथड्स हैं जिसको कि आपको इस्तेमाल करके आप फ्यूचर्स में भी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड इंट्राडे इज इक्विटी कैश मार्केट्स। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स आर वेरी हाई ऑन दैट। ठीक है, और पोजिशनल में आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है। ठीक है, अब was asking me that question. किसी ने अभी क्वेश्चन पूछा था ना, प्रभाकर, राइट? लो वॉलेटिलिटी जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियोस में, राइट? ओके, जो सबसे पहली चीज थी उस वीडियो में उसको डालने का, वो था कि आपको जो उसमें रिपोर्ट दिया हुआ है ना, वो प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि उस रिपोर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि उसमें जो लो वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है। अब प्रभाकर, मुझे ये बताओ कि स्टॉक अप ट्रेंड में दिखा रहा है, ठीक है, और लो वॉलेटिलिटी कुछ इस वाले जगह पे बन जाता है, मान लो इस वाली जगह पे एक लो वॉलेटिलिटी बनता है, फिर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है उस लो वॉलेटिलिटी का। किस तरफ जाना चाहिए प्राइस को? Which side the price should be moving? Okay, so most likely the price is going to break out on the upside. That is what the low volatility setup tells you. ठीक है, अप ट्रेंड में जितनी बार रेंज में फंसेगा और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, मतलब वो समय है कि स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उसी तरह से अगर एक लो वॉलेटिलिटी सेटअप इस वाली जगह पे बनता है और स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है, और इस लो वॉलेटाइल सेटअप को वो नीचे की तरफ तोड़ देता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है अब वो नीचे गिरने वाला है। ठीक है, उसके बाद भी अगर पुट्स महंगे होने लगते हैं तो आप एंटर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, वहां से भी आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, और उस ट्रेड को नीचे की तरफ ले सकते हैं, जैसे कि इसमें उस ट्रेड को ऊपर की तरफ ले सकते हैं। अगर यहां इस लेवल पे जो भी कॉल का वैल्यू आया था आपने उसको देख लिया, आपने अपना स्ट्राइक प्राइस भी निकाल लिया उसमें से, और आप देख रहे हो कि प्राइस इज नाउ ब्रेकिंग आउट ऑन द अपसाइड, ऊपर की तरफ, तो उसको लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक एंट्री पॉइंट है आपके लिए। इज दिस क्लियर प्रभाकर? ठीक है, दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शंस ट्रेड में हमेशा आप देखोगे, मतलब जो जो सबसे सक्सेसफुल तरीका होता है ऑप्शंस में लंबा खिलाड़ी बनने के लिए, ठीक है, वो ये होता है कि जब भी इंप्लाइड वॉलेटिलिटीज गिरती हैं, मतलब जब वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस होने के बाद जो पहला अपडे होता है, जहां पे पहली बार आपको इंडिकेशन मिलता है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, वो दिन होता है एंट्रीज का। ठीक है, वो वहां से ट्रेड में एंट्री बनाना होता है, बिकॉज होगा क्या, जैसे मैंने ये कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे कॉम्प्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, कॉम्प्रेशन में भी क्या हमने इंतजार किया कि एक बारी कॉम्प्रेस हो, वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो उसमें, ओवरऑल ये जो मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट है, इसको थमने दो। जब थमेगा, अगर गिरेगा तो बेचेंगे, चढ़ेगा तो खरीदेंगे। ठीक है,
ये ठहराव स्टॉक्स में बहुत जरूरी है। कभी भी चढ़ते हुए स्टॉक को नहीं खरीदे, क्योंकि चढ़ता हुआ जो स्टॉक है वो यहां पे चढ़ना रुक जाएगा, या यहां पे चढ़ना रुक जाएगा, या यहां पे चढ़ना रुकेगा, या यहां तक जाएगा, किसी को नहीं पता। नोबडी नोज। ठीक है, इस वजह से अगर कुछ चढ़ रहा है उसको चढ़ जाने दो। चढ़ने के बाद कंप्रेशन होगा, उसमें वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगा, चेंज इन हैंड होगा। ठीक है, जब वो चेंज इन हैंड होगा और प्राइस अगर ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बाई करो, प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो होल्ड करो, रुक जाओ, उसको डाउन ट्रेंड बनाने दो। यही सिखाया मैंने अभी। ठीक है, कि फिर ब्रेकआउट में उसको नेगेटिव ट्रेंड को डेवलप करने दो। वो जब नेगेटिव ट्रेंड को डेवलप कर देगा, टाटा स्टील का मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, राइट? उसमें क्या पहले ब्रेकआउट पे दिखने को मिला कि यार प्राइस तो ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, बुलिश है, ऊपर गया ही नहीं, वही उसका पिवट था, वहीं से वो नीचे गिरा। तो हमने एकदम से हम कूद नहीं पड़े कि अब यहीं पे पुट खरीद लो, नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमने वेट किया कि अगले ब्रेकआउट जब होगा, प्राइस को बनाने दो, एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड बनाने दो। जब वो डाउन ट्रेंड बन गया उसके बाद पुट को खरीदा, उससे पहले नहीं खरीदा पुट को। मानते हो नहीं मानते हो सब? ठीक है, तो ट्रेंड पहले एस्टैब्लिश होगा, ट्रेंड एस्टैब्लिश होने के बाद वो कॉन्फर्मेशन देगा, कॉन्फर्मेशन देने के बाद आप एंट्री कर जाइए। I don't think there would be a problem for you to be successful in the options trading market. Okay, any questions, guys? सर इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, को बता दीजिए। हाँ, इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस ऐसे सिलेक्ट करोगे, देखो ये ओपन कर लेना है, इंटरफेस रिपोर्ट को ओपन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये भी दे देता हूँ आपको, कंट्रोल। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लिया, यहाँ इंस्ट्रूमेंट आप इंडेक्स ऑप्शंस सिलेक्ट किया, आपने निफ्टी 50 मान लीजिए सिलेक्ट कर दिया। ओहो, क्या हो रहा है ये? इंडेक्स ऑप्शंस मान लीजिए निफ्टी 50 ईयर और वट एवर इज द स्ट्राइक। ठीक है, अब इंडाइसेस में तो क्या है कि 1 साल तक ट्रेड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस महीने को ट्रेड करना है आपने, तो 26 जुलाई। ठीक है, अब कॉल उठा लिया, अब इसमें 50-50 रुपए के लेवल्स हैं, 50-50 रुपीज के। ठीक है, अब मान लो 10,000 लेवल को इवेल्युएट कर रहे हो, तो यहाँ पे 10,000 लिखा। ठीक है, एंट्री करने से पहले जिस दिन पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है उस दिन का डेट ले लिया आपने। अब देखिए, हर दिन तो ओपन इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, किसी एक दिन पे ओपन इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, जब ये वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी जहां पे, ठीक है, एक एक करके लेवल ऊपर लेते चलो। ठीक है, अब जैसे 10,050 का लेवल ले लिया आपने। ठीक है, जब 10,050 का लेवल ले लिया तो वहां पे देखो क्या प्लस की वैल्यू बनी है। अच्छा, अगर बनी है तो फिर 10,100 पे चले जाओ। ठीक है, क्या वहां पे भी प्लस की वैल्यू बनी है? अगर बनी है तो उसके अगले लेवल पे चले जाओ, 10,050 पे चले जाओ, 150 पे। अच्छा, अब यहां पे हो सकता है कि आपको दिख जाए अरे यार यहाँ तो नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब है कि 10,150 में जाने में इसको दिक्कत होगी, पर ये 10,100 तक शायद चला जाएगा। तो उस 10,100 स्ट्राइक प्राइस को आपको लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है। क्लियर है? सो लेवल वो जैसे जो एग्जांपल था एक्सपेंशन का, हमने हाई लो मार्क कर लिया, अगर लेट्स से हाई इज 10,800 and low is 10,600, right? So if it crosses 10,800 we can buy 10,800, we can see look at this data for 10,800 हाँ, call, करेक्ट। right? Okay, हाँ, okay, करेक्ट, ठीक ठीक राइट। ठीक है, और आउट ऑफ द मनी को बाई करना है हमेशा। ठीक है।
आउट ऑफ द मनी को करना है, इन द मनी एट द मनी को नहीं करना है, क्योंकि उसमें वो प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे आपको। वो जो 100% का आपका टारगेट है वो मुश्किल होता है उसमें। हाँ, टाइम डीके इसीलिए बोल रहा हूँ, आउट ऑफ मनी को आपको करना है, और लास्ट वीक में ट्रेड ना करें, ठीक है। इस वाले वीक में थोड़ा दिक्कत होता है आपको। अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो कोशिश करो जुलाई के बजाय अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर दो, ठीक है। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, लास्ट वर्किंग थर्सडे या फिर थर्सडे से पहले जो भी वर्किंग डे होगा, दैट इज द डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ द मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो टाइम शुड बी इन योर फेवर। जितने भी ब्रेकआउट फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हो जाएंगे, वो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल होंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम थर्ड वीक में ट्रेड करना है, फोर्थ वीक में कभी ट्रेड नहीं करना आप, क्योंकि फोर्थ वीक एक तो पूरा होता भी नहीं है। अगर फोर्थ वीक में ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो उसको आप अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसके अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना। क्लियर है? सर आपने बोला था कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो नहीं बताया आपने। ये क्या किया हमने? ये वॉल्यूम ब्रेकआउट नो सर, वाले ऐसे तो सबको चेक करना पड़ता है ना सर, सारे 50 स्टॉक्स को, मतलब कौन से स्टॉक्स को चेक करना है इससे। मतलब 50 स्टॉक में से ही तो पता लगेगा कि कौन से किसको करना है। ओके, आप बोल रहे हैं कि सभी 50 स्टॉक्स को ओपन करके चेक करना पड़ेगा, ऐसे ना सर? हाँ, ओपन क्यों, आप डाउनलोड कर लो ना फाइल को, क्या ओके प्रॉब्लम है? ठीक है ठीक है, सर। आज आपको मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज से करना शुरू कर रहे हो। जब एक हाँ महीना हो जाएगा, तो एक महीने में तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा, सारा फाइल्स वगैरह सब बन चुका होगा। ओके किसी भी सर, काम ओके को सर। पहले दिन पे शुरू करते हो तो बिल्ड करना पड़ता है ना, हाँ सर, ठीक है सर, थैंक है यू। ना? हाँ, हाँ सर। ठीक है। और इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, आज मुश्किल लग सकता है क्योंकि आज पहली बार आपने शायद लाइफ में देखा है कि ऑप्शंस में मूवमेंट इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको लगेगा अरे यार मैं कल ही कुछ बड़ा कर लूं, कल ही कुछ ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, ठीक है, पर इट विल टेक सम टाइम। ओके, अब होगा क्या कि आज से आप डेटा को बिल्ड करना शुरू करोगे। निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स होते हैं? 50 ना, ओनली 50। एक एक्सेल शीट उठाया, ठीक है, सिंपल एक एक्सेल शीट को लिया, इसमें सारा 50 के 50 का नाम लिख दिया, ठीक है। डे एंड का रिपोर्ट आता है, राइट, सबका नाम लिख दिया यहाँ पे, लास्ट हाईएस्ट वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है टीसीएस, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंडाल्को, ठीक है। टीसीएस का जो पिछली बार जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया था वो मान लीजिए 45,67,895 आया था, जो कि आपने एक बार ही एंट्री करा हुआ है अपने एक्सेल शीट में। हिंडाल्को का जो लास्ट हाईएस्ट वॉल्यूम आया था मान लीजिए लास्ट मंथ में, वो आया था 7,89,634 आया था, ठीक है। अब इस महीने जब फाइल को उठा रहे हो, एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हो ना कि यहाँ पे फाइल को पेस्ट किया, वो बस ये चेक करेगा कि क्या आज का हिंडाल्को का वॉल्यूम इस वॉल्यूम से ज्यादा है। अगर है तो इस वैल्यू को रिप्लेस करके वो वाली वैल्यू को डाल दे। मुश्किल है बहुत, ठीक है। इसका ना एक मैं बहुत साधारण से एग्जांपल दूंगा आपको। आप सब मैगी खाते होगे ना घर में, बिकॉज मैगी इज समथिंग विच इज वेरी मतलब फेवरेट, मतलब स्टेपल सा हो गया है सबके घर में, नूडल्स जो होता है, राइट। अब एक आप मिनट, किसी के भी घर में जाएंगे, आई एम सॉरी, गो अहेड। मिनट प्रिपरेशन। Sorry, somebody wanted to ask a question, I guess. Okay, no problems.
सो आप किसी के भी घर में जाएंगे, उनके घर में जब आप जाएंगे तो उनका जो मैगी बनाने का जो टेम्पलेट होता है ना, जो, ठीक है, टेम्पलेट मेरे दिमाग में इसलिए आ गया बिकॉज प्रभाकर हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उसका टेम्पलेट अलग होता है। ठीक है, मेरे घर में कभी आप आएंगे, अगर मैगी बन रहा है तो आप देखेंगे कि उसमें स्वीट कॉर्न डलेगा, उसमें जो पीस होता है वो डाला जाएगा, थोड़ा सा चिली सॉस भी डालेंगे हम उसमें, ठीक है, और साथ में जो डोमिनोज या ये पिज्जा हट का जो चिली फ्लेक्स आता है वो भी डाल देते हैं। तो दैट एनहांसेस द फ्लेवर, एंड दैट फ्लेवर जो हमने डेवलप किया है अपने घर में, वो हम सबको, हम 4 लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो एवरी टाइम वी विल कुक मैगी, वी विल कुक दैट मैगी इन दैट वे। ठीक है, अब है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, और इस क्लास में 18 लोग हैं या 17 लोग हैं, जितने भी हैं, उन सबके टेम्पलेट्स में हल्का हल्का इस तरीके का फर्क हो सकता है। कोई किसी काम को बहुत डिफिकल्ट वे से करने की कोशिश करेगा, कोई उसी काम को बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की कोशिश करेगा। ओके, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना यह होगा कि आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चाहिए आपको, किस किस चीज के ऊपर आप डिसीजन लेते हो, क्या पढ़ाया गया है आज? What have you studied? What are the vitals? What are the most important things? Volume. So the 3 important things which will tell you what to do is price, volume and deliverable quantity. Yes or no? ठीक है, इन 3 के अलावा तो हमने किसी का बात किया नहीं। We never moved outside this circumference. और क्या मैंने आपको ये भी बताया कि जो इंडिकेटर होता है वो वॉल्यूम्स होता है, वॉल्यूम या डिलीवरेबल क्वांटिटी, ये दोनों जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं आपके। मानते हो नहीं मानते हो? यही बताया। प्राइस आपको रनिंग में देखना है जब होगा। इंडिकेट कौन करेगा? वॉल्यूम करेगा, डिलीवरेबल क्वांटिटी करेगा। सिंपल सा चीज है। ये देखो, यहां गए, ये इंटरफेस रिपोर्ट है, यहां पे क्लिक किया, फुल डाउनलोड, फाइल डाउनलोड हो गया, इसको ओपन करा, ठीक है, इसको ओपन कर दिया, ये ओपन होकर के एक्सेल शीट में कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो दुनिया जहान के जितने भी स्टॉक्स हैं आपके, उन सब का डेटा एक ही शीट पे आ गया। यहां गया, एक फिल्टर लगा दिया, इक्विटी को छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर दिया, राइट क्लिक, डिलीट। ये केवल इक्विटी का डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। बी लुकअप वगैरह मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आप लोगों को कि किस तरीके से लगाया जाता है, एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए, यहां गया, मुझे ये पता करना है कि कौन से स्टॉक्स की, कौन से निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। सिंपल, एक क्लिक मारा, यहां पे सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स आ गए मेरे सामने। मुझे बस नाम से मतलब है, डाउनलोड सीएसवी किया, इसको ओपन किया, ये सारे नाम की लिस्ट आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इस फाइल में चला जाता हूं, क्विकली छांट लेने हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स, इक्वल टू वी लुकअप, किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। कॉलम नंबर 1 0, कितने सेकंड्स का टाइम लगा मुझे? शायद 10 भी नहीं। मुझे पता चल गया, यहां पे मेरे पास वो स्टॉक्स छंट के आ गए जो कि मेरे काम के हैं, बाकियों की जरूरत नहीं है तो हटा दो, क्यों रखना है उसको। सिलेक्ट किया, डिलीट, कितने स्टॉक्स हैं ये? नीचे दिख रहा है यहाँ पे 50,
इन 50 स्टॉक्स की आज की मतलब 20th ऑफ जुलाई जो लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे का, पूरी जन्म कुंडली मेरे सामने खड़ी है। ओपन, हाई, लो, लास्ट, क्लोज, एवरेज, जो कुछ भी होता है इस दुनिया में इस स्टॉक के बारे में, डिलीवरी क्वांटिटी, ये देखो सब कुछ एक ही शीट पे आ गया है मेरे सामने। इस एक फाइल को भी अगर मैं इस्तेमाल कर लूं, मैंने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में क्या बोला था आप लोगों को, आपकी किताब क्या होने वाली है, विच इज योर बुक, एनएससी। ये फाइल कहां से निकाली मैंने, एनएससी के वेबसाइट से, राइट? ठीक है। अब इस डेटा को जब आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रोज काम कर रहे हो, ठीक है, इस एक फाइल को हार्डली शायद 1 मिनट डाउनलोड करके प्रोसेस करने में लगेगा, 10-15 सेकंड शायद इसमें फॉर्मूला लगाने में लगेगा, और शायद इसको थोड़ा सा मसाज करने में 2-3 मिनट और लग जाएंगे, तो मैक्सिमम लगा लीजिए एक दिन में 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, वो भी अगर आप स्लो हैं मेरी तरह। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 मिनट इस फाइल पे मुझे स्पेंड करना है। मुझे ये पता चल जाएगा कि आज इसका वॉल्यूम कितना था। देखिए यहाँ पे ये बता रहा है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। ठीक है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है यहाँ पे, राइट? अब इस फाइल को बना कैसे सकता हूं, सिंपल सा है ना। अब मान लीजिए मेरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो एक ये वाला कॉलम है, और दूसरा कौन सा, ये वाला कॉलम है, डिलीवरेबल क्वांटिटी। यस और नो? बाकी से कुछ मुझे मतलब नहीं है ज्यादा। यस सर। अब देखो, आपके सामने बना दूंगा, ये 2 मिनट लगेगा। मान लो ये सब डिलीट, जरूरत ही नहीं है तो रखना क्यों है, जरूरत ही नहीं है तो रखना क्यों है, जरूरत ही नहीं है तो रखना क्यों है। ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब ये मेरे आज की फाइल बन गई। ओके, इसी टाइप का कल का फाइल पड़ा होगा मेरे पास। मान लो इसी को कॉपी कर लेता हूं, मान लेते हैं कि वो कल का फाइल है मेरा। ठीक है, मेरे पास एक शीट पड़ी है जो कि 19 जुलाई 2018 तक अपडेटेड है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये मैंने मसाज करके आज का निकाला। अब मेरे को देखना है कि ये वाला जो क्वांटिटी है, ये जो कल मैंने जो क्वांटिटी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था उससे ज्यादा है कि नहीं। तो क्या ये बहुत मुश्किल है कि इस वाले कॉलम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा के यस नो ढूंढना? Easy, Will sir. it be very difficult? No, sir. Okay. Easy. And please don't forget, this one file is going to give you lakhs of rupees. Huh? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, पीपल हु वर्क इन द कॉर्पोरेट्स, ओके, वो जानते हैं दिन में शायद 25-30 इस तरह के कॉम्प्लेक्स एक्सेल शीट्स और प्रेजेंटेशंस के बीच में जद्दोजहद करके महीने के आखिर में जाकर के थोड़ा बहुत सैलरी मिलता है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होता है कि साल भर के बाद जो बोनस बोला गया है हमारे ऑफर लेटर में कि 15% मिलेगा, वो मिलने का भी कोई गारंटी नहीं है सब कुछ करने के बाद। ठीक है, अब अगर एक एक्सेल शीट मेंटेन करके आई कैन अर्न लैक्स, इज दैट बेटर और नॉट? ठीक है, तो काम को सिंप्लीफाई कर दीजिए। ओके, टेम्पलेट्स मैगी अपने तरीके से बनाइए जिस तरीके से आपको पसंद है। ठीक है, आप मसाला नहीं खाते हैं, यू लव चीजी मैगी, थोड़ा सा चीज डाल के देखिए ना एक बार कैसा होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, ट्राई टू डेवलप योर ओन थिंग्स दैट विल मेक यू मोर इंडिपेंडेंट इन दिस मार्केट। ठीक है, मिलेगा सब कुछ यहीं से। ये जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाया ना, यहां से, सॉरी कहां चला गया, इस वाला जगह से, ये जो फुल डाउनलोड पे मैंने एक क्लिक मारा और उससे ये जो फाइल आ गया, यही चमत्कार है, यही मैजिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राइट,
Do you think you will be able to manage sail through? Very good. Okay. Don't forget this. Looks like a most stupid slide of the world. Okay. इससे ज्यादा शायद कोई stupid और simple slide नहीं हो सकती. पर जो ये 3 को follow करेगा, वो 10 साल बाद भी जब हम लोग बातचीत करेंगे, वो कहेगा कि आज भी मैं स्टॉक मार्केट में ही काम करता हूँ. Right? और I'm profitable. Not profitable, मतलब I have made a lot of improvements in my lifestyle. 1, 2, 3. ठीक है? Any questions? Further questions, guys? Sir, what is the stop loss in case you are buying options, and how to Put a hedge in case of 50%. yes? Put a 50%. So if you're buying, say, at 4 rupees, okay, try to put a stop loss at 2 rupee or less than 2 rupee. Because most of the cases, what will happen is that once you enter the stock, it will not come back. Okay, and if it is coming back and going to the 50% level, it's not going to work out. So you can exit out at 50%. So don't lose more than 2 rupees in that per share. So 50%. So if you're buying one lot for 4,000 rupees, don't try to lose more than 2,000 rupees on that. Okay, sir. And in case we are selling, like how do we hedge with the other strike? In that case, what you will do is कि आप आपको जैसे ये दिखाया ना मैंने स्ट्राइक प्राइस एटसेट्रा and I have said that look for the ones where the open interest is building up. Okay, like you are looking for the strike price on the upside. Say for example you want to go long, right? You are trying to search for a strike price till what extent is the open interest positive. The same way, try to look for a put side, okay, where it has added open interest. So this column is positive. You can buy that strike price as your hedging point. Okay, so you just do the opposite side of it. So just reverse it. So say for example, if you're selling a put, okay, you want to spend more margin and you are selling a put somewhere, then you have to buy a call. You don't have a choice. Okay, so try to buy the call of the level where the open interest have been added on that day. The day you are deciding to sell the put, the same day you will look for a call where the open interest got added below that level, buy that. So the change in OI column has positive value, right? Always has to be positive. If it is negative, it is useless for you. Okay. Any other question, guys? सर रिवीजन के लिए इस वेबिनार का वीडियो का लिंक मिलता है मिलेगा क्या सर कल? हाँ कल मिलेगा. ठीक है सर, थैंक यू. So sir, in stocks, our trigger will only happen if last month's highest volume is taken out, right, sir? Until that time, we don't have anything to do, right? Correct. So sir, when we look at the delivery volumes, then is there any entry there, sir, that we Yes. can look for? Those are like 400% breakouts. Oh, okay. Any other question? Good. So what I'll do is, आज 22 तारीख है. All of you will receive an email from me, or
मैं कोशिश करूंगा कि इधर 19th को तो शायद एक वेबिनार है, 26th ऑफ अगस्त को मे बी, ओके, वी विल डू वन स्मॉल फॉलो अप क्लास 1 आवर, ठीक है। तो 1 महीना का समय है, ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए चीजों को पहले, ओके। डोंट ट्राई टू जंप ऑन ट्रेड्स, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव अंडरस्टूड टुडे, ओके। और इसको थोड़ा, क्योंकि रिस्क बहुत हाई है यहाँ, तो रिस्क को रिड्यूस करके ट्रेड करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, या हाइपोथेटिकल सिनेरियोज बनाइए, ठीक है, उसको अच्छे से समझिए। सी यू हैव स्पेंट योर हार्ड एंड मनी एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी ऑन दिस, सो जस्ट बी श्योर, ओके, थॉरली इस चीज को रीड कीजिए, पढ़िए, समझिए, ओके। एंड अराउंड आई विल सेंड यू एन ईमेल, सो मोस्ट लाइकली 26th ऑफ अगस्त को एक हम फॉलो अप क्लास कर देंगे, ठीक है, 1 आवर का। तो आप अपना क्वेश्चंस वगैरह जो है वो उसमें लेके आ जाइएगा 26th ऑफ अगस्त वाले क्लास में, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑन द फ्लाई। ठीक है, all right guys, so thank you so much, and it was really a pleasure teaching you all, and I would also like to thank on behalf of my NGO, because इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जो भी फी पे किया हमको, ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो किसी गरीब बच्चे के पढ़ाई में या फिर उसके हेल्थ में, अगर कोई बीमार होता है या उस टाइप का रहता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे जरिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज यू हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्जर कॉज। आपने कंट्रीब्यूट किया है इस फी को पे करके कि किसी बच्चे के लाइफ में हम थोड़ा एजुकेशन और हेल्थ को बेटर बना सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ ठीक से समझ आया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइज अगेन ऑन द फॉलो अप क्लास। सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। Yes, sir. Bye. Bye, sir.